Okay, going ahead with more questions on sounds, waves, and sound. An air column closed at one end and open at the other resonates with a tuning fork when the smallest length of the column is 50 centimeter. The next larger length of the column resonating with the same tuning fork is. तो आपको बोला है आपके पास एक एयर कॉलम है जो एक एंड पे क्लोज्ड है, ओके, and it is open at the other end. It resonates with a tuning fork when the smallest length of the column is. Smallest length मतलब fundamental frequency की बात की गई है यहाँ पे. So क्योंकि you know smallest length when you get resonance is the fundamental frequency. Okay, so length is 50 centimeter. The next larger length मतलब जो first overtone होगा, ओके, अभी डिफरेंस है. आप अब बोलोगे कि हम पाइप का लेंथ चेंज करें, हम पाइप का लेंथ नहीं चेंज कर रहे हैं, हम एयर कॉलम की बात कर रहे हैं. व्हाट इज एयर कॉलम? एयर कॉलम मतलब अगर आप ट्यूनिंग फोर्क लगाओगे तो यू गेट समथिंग लाइक दिस. साउंड वेव्स गोज इनसाइड एंड देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एंड इट कम्स आउटसाइड. ये हो गया फंडामेंटल मोड. इसके बाद जो नेक्स्ट हायर मोड होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, 1.5 लूप. तो आपको ये पूछा है कि इन द नेक्स्ट मोड व्हाट इज लेंथ L1 ऑफ द एयर कॉलम. एयर कॉलम पाइप के थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है. एयर कॉलम और द रियल लेंथ इज नॉट द सेम बिकॉज यू नो एंटीनोड स्टार्ट्स लिटिल अबव द पाइप. ओके, ये पता होना चाहिए आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन दे टेल यू कि फंडामेंटल मोड में है ना, स्मॉलेस्ट मतलब फंडामेंटल मोड, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो स्मॉलेस्ट मींस fundamental, and you know in fundamental mode of vibration for a closed pipe you have half a loop, one node and one antinode, and you should know that distance between antinode and a node is lambda by 4. Correct? This is something which is required. तो आपको इन शॉर्ट वेवलेंथ दे दिया है 200 सेंटीमीटर का. तो you have been given 200 centimeter wavelength. तो आपको यहां से मिल गया 200 सेंटीमीटर का वेवलेंथ. आपको ये पूछा है नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ एयर कॉलम. इसका जो अगला मोड होगा, अगले मोड में आपके पास क्या होगा? यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. You will have 1.5 loop. 1.5 loop. थोड़ा diagram, do not mind my wrong drawing because I'm not good at drawing. ऐसा कुछ होगा. This is antinode, this is node, this is antinode, then you have node. तो antinode to antinode and node to node. ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए 1.5 loop, node to node, lambda by 2, और node to antinode, lambda by 4. तो lambda by 2 that is 1/2. मतलब 0.5 and lambda by 4 is 1/4. Half plus 1/4, 0.75, 3/4. So next higher length is 3/4. Okay, right? 3/4 of what? Wavelength. So next is 3/4 of lambda. फर्स्ट मोड में लैम्बडा कितना है? 200. तो 3/4 into 200 मतलब 1 जा एंड दिस इज 50 था. तो कितना? 150 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन नंबर सी. तो बेसिक चीजें हैं दैट यू नीड टू नो कि आपको बोलने की कोशिश क्या की है. स्मॉलेस्ट मतलब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात की है. गुड. देन इफ यू नो दिस, आपको लैम्बडा मिल जाएगा, और देन लैम्बडा मिलने के बाद आप एयर कॉलम का जो नेक्स्ट मोड में जो लेंथ होगा वो फाइंड कर सकते हो. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू. अगला क्वेश्चन. The fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 cm is equal to second overtone of an organ pipe open at both the ends. The length of organ pipe open at both the ends is. यहाँ पे आपको first of all ये पता होना चाहिए what are different modes of vibration of pipe closed at one end
and pipe open at both the ends. Fundamental frequency of closed organ pipe NC, let us say, ये आपको पता है, you should know this, it is V by 4L. For open pipe, fundamental frequency is V by 2L. Correct? Well, by the way, तो जो next higher frequency होंगे आपको पता है, you will have N0, then you will have 2N0, then you will have 3N0, 4N0, and so on and so forth. क्योंकि for a pipe open at both the ends, all the harmonics are present, and for a pipe closed at one end, only odd harmonics are present. Good. तो आपको बोला है fundamental frequency of closed pipe NC is equal to second overtone. तो ये आपका हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये आपका हो गया फर्स्ट ओवरटोन, ये आपका हो गया सेकंड ओवरटोन. ओके, तो दिस इज सेकंड ओवरटोन. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन, NC is equal to 3N0. Simple. NC is V by 4LC, length of closed pipe. This is 3V upon 2LO, क्योंकि you know fundamental frequency of open pipe is V by 2L. Cancel, where V is speed of sound in air, 1za and 2za. आपको क्या पूछा है? Length of open organ pipe. तो L0 is equal to 6 times of LC. This is what you should get. 6 times of LC. LC कितना था? 20 था. 6 into 20, 120 centimeter. Option number B. Right? इजी क्वेश्चन था. बेसिक्स बहुत जरूरी है. अगर आप लोगों को बेसिक्स नहीं पता होगा तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. अगर आप इफ यू आर एक्सपर्ट तो ओरल था. कैसे? गिवन NC इज इक्वल टू 3N0. बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं थी. क्यों नहीं? क्योंकि N इज, एज यू नो ऑलरेडी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, ये आपको पता होता है, V by 4LC. दिस इज 3V by 2LO. सॉल्व करो, डन, खत्म. तो बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं थी हमको. नेक्स्ट क्वेश्चन. The second overtone of an open organ pipe has the same frequency as the first overtone of closed pipe. So more or less same. Second overtone मतलब 3 times of N0. First overtone of closed pipe. Closed pipe में fundamental के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, क्योंकि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. तो फंडामेंटल के बाद सीधा सीधा यही आता है, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, N 3NO इक्वल टू 3NC है ना. जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं बता देता हूं वापस से. सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप is equal to first overtone of closed pipe. Of closed pipe. Second overtone of open pipe is 3N0. First overtone of closed pipe is 3NC. 3 cancel. Why? Because closed pipe has only odd harmonics. NO, fundamental frequency for a pipe open at both the ends. It is, as we just wrote here, V by 2L0. V by 2LO. This is V by 4LC. Cancel and cancel. What do you want to find is length of open pipe. So length of open pipe is, this is 1za, this is 2za. So it is 2 times of LC. LC was L, so 2 times of L. Option number D. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. The two nearest harmonics, nearest मतलब first, second, third, fourth, nearest मतलब in between कुछ नहीं है. Okay, the two nearest harmonics of a tube closed at one end and open at other end are 220 and 260 hertz. What is the fundamental frequency of the system? ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स
टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, इसके लिए एज आई टोल्ड यू, पहला फ्रीक्वेंसी होगा n, दूसरा होगा 3n, ओके 3n, फिर होगा 5n, फिर होगा 7n। तो मैं इसको लिख सकता हूं n 2 into 1 plus 1n, मतलब 3, ओके। देन 5 को आप लिख सकते हो, you can write 5 as 2 into 3, 2 into 3, right? 2 into 2 plus 1, ओके। इसको लिख सकते हो 2 into 3 plus 1, मतलब इन शॉर्ट 2 into p plus 1, right? If p is 1, you have first overtone, second harmonic। अब याद रखना ये टू नियरेस्ट बोला है, तो हमें इतना डिटेल नहीं देखना है। इन शॉर्ट, पीथ हार्मोनिक, पी स्टार्ट फ्रॉम 0, पीथ हार्मोनिक के लिए आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ हार्मोनिक is np, which is 2 into p plus 1 into n। क्लियर? अब आपको बोला है टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड। पहला क्वेश्चन समझ लो, टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर, मतलब एक एंड से ही क्लोज है, ओके। 220 एंड 260, मतलब एनपी की वैल्यू आपको 220 दी है और एनपी प्लस 1 की वैल्यू 260 दी है आपको, ओके राइट। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। np प्लस 1 माइनस np, दैट इज 260 माइनस 220, तो ये आपको मिल जाएगा np प्लस 1। तो जहां जहां पे यहाँ पे p दिख रहा है वहां पे p प्लस 1 डालोगे, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 1 प्लस 1, ओके, माइनस 2p प्लस 1 इंटू n, ऑफ कोर्स n तो रहेगा ही, तो n यहाँ पे भी रहेगा, पहले टर्म में भी रहेगा, सेकेंड टर्म में भी n रहने ही वाला है। तो यू हैव टू राइट डाउन फंडामेंटल दिस इज 40। तो इसको आप कर लोगे 2p प्लस 2 प्लस 1, मैं n कॉमन निकाल लूंगा, माइनस 2p माइनस 1। तो ब्रैकेट को भी ओपन कर ही देते हैं, जस्ट रिमूव दिस ब्रैकेट फ्रॉम हियर, इनटू n इज इक्वल टू 40, ओके। तो अब ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 2n इक्वल टू 40, n इक्वल टू 20, तो आपको मिल गया 2n इक्वल टू 40, मतलब n इक्वल टू 20, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यू हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज 20 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? जिनको नहीं समझा है मैं वापस बता देता हूं। देखो, द आइडिया इज, अगर मेरे पास दोनों एंड्स पे ओपन पाइप होता तो उस केस में n के बाद 2n, फिर 3n, फिर 4n। पीथ हार्मोनिक में ओवरटोन नहीं बोल रहा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट हार्मोनिक, ओके। उसके बाद का जो होता है उसको पहला ओवरटोन बोलते हो। यहाँ पे ओवरटोन की बात ही नहीं है, यहाँ पे हार्मोनिक ओवरटोन वर्ड यूज किया था, कहीं पे भी नहीं किया। तो ये पहला हार्मोनिक है, ये दूसरा हार्मोनिक है, ये तीसरा हार्मोनिक है। तो पीथ हार्मोनिक क्या होगा? p टाइम्स ऑफ n। ये है फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड यू विल हैव n, 3n, 5n, 7n, so on, राइट। तो मुझे जनरल फॉर्मूला बनाना है, तो ये बनेगा 2p प्लस 1 इंटू n, करेक्ट? सिंपल, गुड। तो इफ आई पुट p इक्वल टू 1, यू गेट 3n, राइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, अभी ओवरटोन की बात कर रहे हैं या हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, दिस इज इशू ओवर हियर। तो आपको ये समझना है, वी आर टॉकिंग अबाउट पीथ हार्मोनिक, ओके राइट। गलती हो भी गई फिर भी इशू नहीं है, क्यों? आई टेल यू व्हाई।
अगर मैं P की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं, मैं फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहा हूं, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए क्या आना चाहिए? n। डालो तो 1, यहाँ पे क्या आएगा? 3n। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे अंदर माइनस आना चाहिए था। क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका पीथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, ये एनपी आ गया आपका। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा 2 इंटू पी प्लस 1 माइनस 1, मतलब 2p प्लस 2 माइनस 1, मतलब 2p प्लस 1 इंटू एन। करेक्ट? अब मैं जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है तो डिफरेंस की बात होगी। ओके, तो 2p प्लस 1 एन माइनस 2p माइनस 1 एन, तो 2p कैंसिल होगा, तो ये आपके पास 2n बचेगा वापस से। राइट? हमने क्या लिखा था? हमने यहाँ पे पीस में प्लस 1 लिखा, फिर भी करेक्ट आंसर क्यों है? क्यों? वाई? बिकॉज यहाँ पे ओवरटोन की बात नहीं हुई। हार्मोनिक में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पी के 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो टू बी प्रिसाइज, अगर ओवरटोन बोला होता तो आंसर गलत आता। तो व्हाट यू शुड डू इज बेटर अंडरस्टैंड कि फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल, तो पी की वैल्यू 1 डालोगे तो एन मिलना चाहिए। करेक्ट? गुड। तो डजंट मैटर, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आंसर अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम। तो डजंट मैटर एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू। सिर्फ यहाँ पे आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करते वक्त उल्टा करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। इंस्टेड ऑफ np plus 1 minus np, you will be doing np minus np plus 1। तो सिर्फ टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो आप कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो, मैंने यहाँ पे करके रखा है वो। यू विल गेट दिस। doesn't really doesn't make any difference really। तो ये आपके पास आ गया, ये डिफरेंस जो है ये 40 है, तो आपको मिल गया 2n equal to 40, तो n equal to 20 hertz। That is why I told you formulas are important, you should know formulas। What is formula of teeth over tone for pipe open at both the ends? Over tone, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। n कहां से आ गया? मैं p, well, for pipe open at both the ends you have n, 2n, 3n। ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकेंड हार्मोनिक, बट फर्स्ट ओवरटोन है। राइट? First overtone is 2n, second overtone is 3n, third overtone is 4n, fourth overtone is 5n. So pth overtone is p plus 1n। You should know this। What is pth overtone for a pipe closed at both the ends? कुछ नहीं, वेरी गुड। क्योंकि अगर दोनों एंड से पाइप को क्लोज कर दिया तो वहां पे अंदर साउंड जाएगा कैसे? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। The tuning fork, a tuning fork is used to produce resonance in a glass tube। The length of the air column in this tube can be adjusted by variable piston। मतलब you have a glass tube whose length can be adjusted by a variable piston। So you have a variable piston over here। So this piston is movable, so length can be changed। Okay, at room temperature 27 degrees Celsius पे two successive resonances are produced at 20 and 73 centimeter column। मतलब ऐसा है कि पहला रेजोनेंस जब मिला, L1 जब मिला तो 20 सेंटीमीटर का एयर कॉलम था, जब दूसरा मिला तब 73 था। तो आई विल रिटेन द डायग्राम फॉर दिस एंड आल्सो ड्रॉ अनदर। तो फॉर टू सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, ओके, यू हैव दिस। पहले एयर कॉलम का लेंथ है, ओके, राइट। आप बोलोगे कि हाउ कैन यू सेंड, तो प्लीज नीचे का ये हटा दो। ओके,
So this is what you will get. All right. This is how you're supposed to do. अभी आपके पास ये पहले बार जो कॉलम का लेंथ है L1 वो 20 है, दूसरे केस में जो L2 है वो 73 है. Okay, if the frequency of the tuning fork is 320 hertz, the velocity of sound in air at 27 degree is. You are supposed to find out velocity of sound in air at room temperature. आपको अब ये पता होना चाहिए velocity is 2 times of f L2 minus L1. ये कहां से आया? This is a simple thing. कैसे आया मैं बता देता हूं. अभी अभी मैंने बताया this is a pipe which is open at one end. Okay? इस केस में आपको पता है pth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी p into n होगा, where p is number of loops और कौन सा हार्मोनिक है वो, and n is v by 2l. np plus 1 will be p plus 1 into n, that is p plus 1 v by 2l. सक्सेसिव बोला है. हाँ, तो np plus 1 minus np सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो p plus 1 v by 2l माइनस पी वी बाय 2l. तो यहाँ पे p plus 1 माइनस पी वी बाय 2l, तो v बाय 2l. तो क्या मिला आपको? डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू सक्सेसिव हार्मोनिक्स इज v बाय 2l. वेरी गुड. तो मैंने आपको हिंट दे दिया ये फॉर्मूला कहां से बनता है उसका. मैंने हिंट दिया है, मैंने फ्रीक्वेंसीज को चेंज किया था, यहाँ पे लेंथ चेंज किया गया है. और यू शुड नो हम इसको कैसे करेंगे. व्हाट इज v? दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा. करेक्ट. बट डू यू रिमेंबर लैम्बडा डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ योर कॉलम. यस. तो आपको क्या करना है, आपको लैम्बडा को इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखना है एंड देन यू कैन मेक दिस फॉर्मूला. सो ये फॉर्मूला कैसे बनता है? इट इज अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू टू डू टुडे. इट इज वेरी सिंपल. तो कुछ नहीं है यहाँ पे. 2 इंटू फ्रीक्वेंसी 320. डिफरेंस इज 73 माइनस 20, बट सेंटीमीटर में है तो 10 पावर माइनस 2 मीटर. तो यह जगह 2 इंटू 320, दिस इज रफली 53, मतलब एग्जैक्टली 53. दिस इज रफली 100 कैंसल, तो 320 के आसपास. तो 320 के आसपास आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा बिकॉज नंबर्स गिवन आर वेरी नियर टू ईच अदर. तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लोगे एंड आई थिंक यू विल गेट 339 पॉइंट समथिंग 0.2 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर बी. तो ये फॉर्मूला यू शुड नो when you have two different lengths, how to find out velocity of sound in air if frequency is given to you. Next question number 13. The fundamental frequency in an open organ pipe is equal to third harmonic of a closed organ pipe. If the length of closed organ pipe is 20 centimeter, the length of open organ pipe is. Okay, so as I told you, question is simple. Fundamental frequency of open pipe is equal to third harmonic of closed pipe. Third harmonic, not third overtone. Third harmonic of closed organ pipe. Third harmonic 3 and C. Okay, second harmonic तो missing होता है. Good. This is V by 2 times of LO. This is 3V by 4LC. आपको length of open pipe बोला था. 1 and 2 length of open pipe. So length of open pipe is, of course, कैसे find करोगे? 2 by 3 times of length of closed pipe. 2 by 3, okay, into closed pipe का 20. 40 by 3, 39 by 3 तो 13 होता ही है.
40/3 13.2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। हार्मोनिक, नॉट ओवरटोन, हार्मोनिक, ओके। ये ध्यान दो, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड यू सी दे आर वेरी रिसेंट, 2017, 18, 2019 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a source of sound S emitting waves of frequency 100 Hz and an observer O are located at some distance from each other. You have a sound source S which is emitting sound of frequency 100 Hz. So real frequency is 100 Hz. You have source S. Source S and observer O, they are located at some distance from each other. The source is moving with the speed of, velocity of source is 19.4 meter per second at an angle 60 with the source observer line as shown in figure. The observer is at rest. VO is 0. Apparent frequency observed by the observer is. यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, मैंने जो लास्ट सेशन में आपको फॉर्मूलाज बताए थे, आई टोल्ड यू देयर हैज टू बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स अलोंग द लाइन, सेम लाइन। तो यहाँ पे सेम लाइन है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले आप देखोगे component or projection of velocity of source in the direction of observer। आपको पता है ये आ जाएगा Vs cos of 60। तो you will be taking not Vs but Vs cos 60। तो आपको पता है apparent frequency Na is V, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, Vs cos 60 into n, नीचे माइनस या प्लस, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कम हो रहा है कि ज्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है। तो Na/n रेशियो ऑफ अपरेंट बाय रियल फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिस्टेंस ओवरऑल कम होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स कम होगा। लुक एट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अगर ये वेक्टर यहां पे होता तो फिर इसका कंपोनेंट इट इज गोइंग अवे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देयर इज वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड नॉट गोइंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो फॉर द रेशियो, क्योंकि ऑफ कोर्स apparent frequency is greater than real, मतलब Na/n is greater than 1। तो ये जो आपके पास रेशो है ये ग्रेटर देन 1 होने के लिए, ग्रेटर देन 1 होने के लिए नीचे चाहिए माइनस, न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो V 330 लेना है, आपको बोल के रखा है, अपॉन 330 माइनस Vs cos थीटा। Vs आपको बोला है 19.4 cos ऑफ थीटा, दैट इज cos ऑफ 60, है ना, into n, n is 100 hertz। This is 330 upon 330 minus 19.4 by 2 because cos 60 is 1/2। तो ये आप जब करोगे सॉल्व तो ये आपको मिलेगा 19.4 by 2 is roughly 10, 330 में से 10 गए तो 320 into 100, में रफ बता रहा हूं आपको, ओके। तो डेफिनेटली आंसर जो है वो ग्रेटर देन 100 आएगा, ग्रेटर देन 100। तो सी और डी तो आएगा नहीं, राइट। तो ए और बी में से एक। अभी वो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो आपको करने पड़ेंगे, यू आर सपोज टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस एंड यू शुड गेट 103 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। तो जब एग्जैक्टली सेम लाइन में मोशन नहीं है तो आपको देखना है, चाहे वो ऑब्जर्वर मूविंग हो चाहे वो सोर्स मूविंग हो। सोर्स मूविंग है तो जो सोर्स मूविंग है उसका वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर है या नहीं। इन द डायरेक्शन है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सो ऐसा सॉल्व करना है। Next question, a siren
emitting a sound of frequency 800 hertz, moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. Okay. Then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff. So, first of all, what is cliff? ये ऐसा एक बहुत क्या बोलते हैं स्टीप, बहुत स्टीप जो माउंटेन होता है उसको आप बोलते हो क्लिफ. Okay, extremely steep. Okay, you can say a slope is infinite basically. Okay, because a line parallel to y-axis is infinite slope. Now you have a siren. You have a siren. Let's say there is an ambulance or a police van with a siren. So this is blowing siren. There is an observer, and this observer happens to be stationary, if I'm not wrong. A siren emitting a sound of frequency, but of actual frequency is 800 hertz. Okay, moves away from an observer. So it is going away from an observer towards a cliff. Okay, cliff तो definitely stationary होने वाला है. Okay, right. The frequency of sound that observer hears in the echo, मतलब observer भी rest पे है. This guy or girl, whatever it is, human being is stationary. So this is stationary. इसका velocity 0 है. तो या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर इसको स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट 1 में क्लिफ पे कितना एपरेंट पहुंचेगा. तो पहले पार्ट में सोर्स जो है वो ये सायरन है और लिसनर जो है मतलब ऑब्जर्वर जो है वो क्लिफ है. तो मैं दोनों आपको करके बता देता हूं. तो इन केस 1 यू विल हैव सोर्स एज सायरन. So velocity of source, if it is given to you, that is 15 meter per second. Observer is cliff, which is stationary. So observer is nothing but cliff, which is stationary. और ये तो मूव हो नहीं सकता. और by the way, distance जो है वो कम हो रहा है. तो v upon v minus vs into n. v is 330 दिया ही है. 330 minus 15 into n was 800. या तो इसको सॉल्व करो. I never advise to do calculation here. Just keep this formula. अब क्या होगा, यहाँ पे na फ्रीक्वेंसी आया. अब यहाँ से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके इस whatever it is observer, okay, so towards some human being. Okay, तो केस 2 में क्या होगा. in case 2 क्लिफ मूविंग है नहीं. ये जो ह्यूमन बीइंग है वो मूविंग है नहीं. तो फिर फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों होने लगा. तो क्लिफ के पास जितना एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उतना ही वो रिफ्लेक्ट करने वाला है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. दैट्स इट. ओके, अगर ये ह्यूमन भी मूव होता तो चेंज होता, राइट. तो इन शॉर्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. बट ह्यूमन इज ऑल्सो स्टेशनरी. तो वो भी स्टेशनरी है तो उसके पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा na डैश, therefore na डैश is equal to na, that is equal to v upon v minus vh into n. तो ये 330 upon 330 minus 15 into 800. तो 330 upon 315 into 800. तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 800 आएगा, है ना. तो अभी 838 आता है कि 885 आता है. That is part of calculation. Okay, good. अगला question. In a sinusoidal wave, the time required for a particular point to move from maximum displacement to zero displacement is 0.170 second. The frequency of the wave is. In a sinusoidal wave, first of all, do you know how does a sine wave looks like?
Actually, I don't want to draw this diagram, but just to tell you. So sine wave looks something like this. आपको बोला है time required for a particular point to move from maximum displacement to minimum displacement, 1/4 of cycle. It is just like, it is not just like, it is in fact a particle performing SHM. Okay, frequency of the wave is, तो ये पता होना चाहिए कि what they are asking and what formulas you should use. अभी आपको पता है, मैंने कल ही बताया था, I told you yesterday itself that it is correct that time taken to move from mean to extreme is t/4 and from extreme back to mean is t/4. तो जब मैक्सिमम से वापस से जीरो डिस्प्लेसमेंट पे आ रहा है तो टाइम इज t/4, राइट? पर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म. यू कैन नॉट से हाफ पे आने के लिए t/4 का हाफ, नो, दैट इज नॉट करेक्ट. ओके, तो इतना पता होना चाहिए. आपको क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी. आपको टाइम दिया है, t आपको दिया है, पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी. t इज इक्वल टू t/4 है, बट टाइम पीरियड t इज 2π/ω. करेक्ट, गुड. तो ओमेगा is 2π/4t, but omega is 2π times of frequency, right? 2π 2π cancel, so frequency is 1/4t. This is 0.170. 17 fours are 68. 1/0.68. 34 का डबल 68 होता है, so this is 0.68. 1/0.68. Definitely it cannot be this, it cannot be this. Okay, तो अभी इसको सॉल्व करो आप. So you have to calculate, तो आपको मिलेगा 1.47 hertz. Done. The velocity of sound is Vs in air. If the density of air increased to 4 times, then the new velocity of sound will be. You should know velocity of sound in air is inversely proportional to under root of density. It is inversely proportional to under root of density, पता होना चाहिए. तो V2/V1 is equal to ρ1 by ρ2. But given में क्या बोला है कि density is 4 times of initial, तो ρ1 by ρ2 is 1/4. तो V2 by V1 is root of 1/4. तो V2 is V1/2, मतलब V1/2 मतलब Vs/2. ऑप्शन नंबर ए. बेसिक्स मैंने इसलिए बताया था, when I started this chapter in the last session, I told you that you need to know velocity of transverse wave on a stretched string is root of tension by mass per unit length. Velocity of sound in air ये किस पे डिपेंड करता है? अभी तो डेंसिटी की बात आई है. यू शुड नो इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस. व्हाई बल्क मॉड्यूलस? जब मैं बोल रहा हूं, जब कोई साउंड सोर्स है, जब वो वहां से साउंड निकलेगा तो उसके पास का जो एयर है इट गेट्स कंप्रेस्ड. कंप्रेस मतलब डेल्टा वी. डेल्टा वी मतलब कौन सा मॉड्यूलस? बल्क मॉड्यूलस. सो यू शुड नो दिस. That, by the way, v is directly proportional to root of bulk modulus as well. तो ये पता होना चाहिए. A boat at anchor is rocked by waves whose crests are 100 meter apart. Velocity is 25 meter per second. The boat bounces up once in every how many seconds? This is very good question. Boat at anchor. This is a boat. Anchor मतलब उसका front. तो टाइटैनिक देखा होगा आपने, जो एंकर पे खड़े रहते हैं, राइट? सो दैट इज एंकर. आपको बोला है a boat at anchor is rocked by waves, so there are some waves which are coming, something like this, जिसमें crest to crest distance, whose crest are मतलब λ/2, क्योंकि crest to crest distance λ/2 होता है ना. हाँ, लैम्बडा होता है. yes, so you should know exactly what they are saying. This is lambda. Lambda is 100 meter. और velocity v is 25 meter per second. अभी ऐसा है कि बोट कितने टाइम में बाउंस होगा? वेरी ऑब्वियस.
पहले क्रेस्ट पे बाउंस होगा, फिर दूसरे क्रेस्ट पे बाउंस होगा, मतलब टाइम पीरियड ऑफ वेव पूछा है, दैट्स इट. What is time period of wave? This is what they're asking you. You already know V is equal to n lambda. N is equal to V by lambda. Time period is 1 by frequency, so lambda by V. Lambda is 100, V is 25, 4 second. खत्म क्वेश्चन, राइट. बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन था. C by lambda, that is for light. Frequency C by lambda is for electromagnetic radiation. Okay, that is also transverse wave, but this is mechanical wave because medium है यहाँ पे. The function sine square omega t represents a periodic but not simple harmonic motion with period 2 pi by omega. A periodic but not simple harmonic with a period of pi by omega. A simple harmonic motion with a period of 2 pi by omega. A simple harmonic motion with a period of pi by omega. First of all, मैंने कल ही बताया था, पावर में साइन या कॉस के पावर में 2 आया, मतलब डेफिनेटली इट इज नॉट SHM. Rest assured, no SHM. Sine square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. करेक्ट. सो ये जो फंक्शन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 minus cos 2 omega t by 2, it is a periodic function but not simple harmonic with a period of. How do you find out period? Comparing with, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 ओमेगा है ना, तो कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा डैश एस 2 ओमेगा. ओके, that is what? This is a very simple thing, extremely simple. With a period of what? पाई बाय ओमेगा. कैसे पाई बाय ओमेगा आया है पता होना चाहिए आपको. Oh yes, you have to compare. ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल गया ओमेगा डैश एस 2 ओमेगा. व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाय ओमेगा डैश. तो 2 पाई बाय ओमेगा डैश 2 ओमेगा कैंसल तो पाई बाय ओमेगा. सो इट इज a periodic but not simple harmonic with a period of pi by omega. Next question. The equation of a sound wave is y equal to 0.0015 sine of 64.62.4x plus 3160. The wavelength of this wave is. ये जो आपको वेव दिया है, आपको सिर्फ इस वेव को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है. मैंने इसलिए बताया था कि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के सारे इक्वेशन याद होने चाहिए. तो दिस इज a sin of omega t plus kx. Comparing, you will get k equal to 62.4, but k is 2 pi by lambda, that is equal to 62.4. So lambda is 2 into pi by 62.4. 3.14 का डबल 6.24. ओके, 6.28 इन रियलिटी है ना, तो 6.28 है. मैं इसको रफली सॉल्व करने वाला हूँ. रफली 1 जा 10 जा रफली. तो 1/10 is 10 power minus 1, मतलब 0.1 यूनिट. ऑप्शन नंबर डन, सिंपल. नेक्स्ट, k is called as, basically k क्या होता है? k is called as wave number, जो लेंथ का इनवर्स डायमेंशन देता है. ओके, या the equation of a transverse wave traveling on a rope is given by 10 sin pi 0.01 x minus 2t. Y and x are in centimeter, t is in second.
the maximum transverse speed of a particle Vmax is a omega. You should know this by default. A is 10. ओमेगा ओमेगा जब तक आप पाई को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते तो मल्टीप्लाई करो 2 पाई. ओके 20 पाई. पाई 3.14 into 2 62 point something. Okay 63 ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट. पाई को मल्टीप्लाई करना. अगर पाई को मल्टीप्लाई नहीं किया तो फिर आंसर विल बी रॉन्ग बिकॉज देन यू विल बी राइटिंग अराउंड 20 something like that. If the phase difference between two sound waves of wavelength lambda is 60 degree, the corresponding part difference is. So, if the phase difference between two sound waves is of wavelength lambda is 60, corresponding part difference is. This is joke. Path difference delta x is lambda by 2 pi into phase difference delta phi. Lambda by 2 pi. Phase difference is 60 degree. 60 degree is pi by 3. तो ये lambda by 6 आएगा. ऑप्शन नंबर ए. खत्म. When a guitar string is sounded with 440 hertz tuning fork, a beat frequency of 5 hertz is heard. If the experiment is repeated with a tuning fork of 437 hertz, the beat frequency is 8 hertz. The string frequency is. So you should know. Beats कब होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए. Now I will tell you exact difference between interference. मतलब beat formation भी interference होता है, लेकिन जो interference आप सीखते हो जैसे आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क पॉइंट, मतलब नो लाइट इज देयर, उसमें और बीट में क्या डिफरेंस है. सी द थिंग इज इन बोथ केसेस बोथ आर एक्चुअली सुपरपोजिशन. तो दोनों ही केसेस में आपको कम से कम 2 वेव्स लगेंगे. इन केस ऑफ constructive or destructive interference, you have waves of same frequency, right? You may have different amplitudes. may क्या वो होना चाहिए, right? You may or may not have different amplitudes, but frequency is same. Frequency is same मतलब wavelength is same, lambda is same. क्योंकि as you just said, frequency is c by lambda. c तो anyways constant है, right? ऐसे केस में you get interference pattern in case of light. अगर दोनों waves का crest ट्रफ मैच हो रहा है तो you get constructive interference because of addition of amplitudes, right? Beats में क्या होता है? First of all, beat is a concept related with sound. In this case, you have 2 or more waves with slightly different frequencies. The frequencies is slightly different. So sharp interference जैसा कि यहीं पे bright यहीं पे dark वैसा नहीं होता. So in this case you get a pattern something like this. पहले एम्पलीट्यूड बढ़ेगा फिर एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा. तो ऐसे आपको बीट्स मिलते हैं. ओके अब जहां पे लाउड साउंड सुनाई देगा मतलब उस केस में एग्जैक्टली पहले वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड के साथ मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट एग्जैक्टली मैच हो गया. यू हियर अ लाउड साउंड. उसको बोलते हैं वैक्सिंग, राइट? तो hearing of loud sound. Now you have some points where you will see exactly cancellation of amplitudes. मतलब crest is overlapping with trough. That is a vein. Exactly no sound. You hear nothing. मतलब यहाँ पे क्या है कि साउंड का इंटेंसिटी 0 से बढ़ के कम हो रहा है. तो जब 0 था तो उसको
विन, मैक्सिमम था वैक्स, राइट। नाउ इन दिस केस अगर दो वेव है और मैंने क्या बोला, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो एक का फ्रीक्वेंसी n1 मान लो, दूसरे का n2 मान लो। तो अब एक सेकंड में कितनी बार लाउड साउंड या कितनी बार लो साउंड सुनाई देगा, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी, and that happens to be exactly the difference of the two frequencies, n1 minus n2 or n2 minus n1, depending on which frequency is greater. So first of all, you should know that beats are waxing or waning of sound when there are two or more sound waves interfering, but these two waves have slightly different frequencies. They don't have exactly same frequencies. Okay, good. Then beat frequency जो भी होगा, that is number of wax or veins that you hear per second, and that is given by n1 minus n2. इतना पता होना चाहिए आपको। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने का सोच सकते हैं। When a guitar string is sounded with 440 hertz tuning fork, a beat frequency of 5 hertz is heard. तो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क 440 बोला है, तो मैंने अभी अभी बताया गिटार का या तो इससे बड़ा होगा या फिर इससे कम होगा, लेकिन इन बोथ केसेस डिफरेंस इज 5, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इसको लिखते वक्त कैसे लिखते हो? अब इसको लिखते वक्त बोलते हो ये जो गिटार का फ्रीक्वेंसी है या फिर ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी है, मैं गिटार की स्ट्रिंग की बात करता हूं, तो ये 440 प्लस 5 होगा या माइनस 5 होगा। समझा? क्लियर? क्योंकि वी डोंट नो कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। गुड, राइट। तो अब आपको बोला है इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 437 हर्ट्ज, द बीट फ्रीक्वेंसी इज, तो इन द नेक्स्ट केस it will be 437 plus minus 8, correct? Good. Now answer is 445. कैसे? तो ये अभी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये कैसे आता है। You have to find common number between the two, क्योंकि दोनों केस में गिटार सेम था। यस, वेरी गुड, दोनों केस में गिटार सेम था, गिटार चेंज नहीं किया ना, नहीं किया। तो फिर इन दोनों में से अगर मैं इसके दो ब्रांच करता हूं, 440 माइनस 5 करता हूं तो 435, प्लस करता हूं तो 445, इसके दो ब्रांच करता हूं मैं अगर 437 प्लस 8 करता हूं तो 445, माइनस करता हूं तो 429, जो कॉमन होता है दैट इज द आंसर। ये ट्रिक है, तो हमें ट्रिक से मतलब है स्टेज पे, वी डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, आई डोंट वांट टू सॉल्व कंप्लीटली, तो जो कॉमन है वो लेना पड़ता है, राइट? तो एग्जाम में आया तो ऐसा करना है, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। The frequency of tuning forks A and B are respectively 3% more and 2% less than frequency of tuning fork C. एक tuning fork है A, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो C से 3% ज्यादा है, तो NC प्लस 3% ऑफ NC, मतलब दिस इज 1.03, 3%, 30% बता रहे हो, 1.3, ओके। और जो B है इसका 2% से कम है कंपेयर टू C, मतलब NC माइनस 2% ऑफ NC, मतलब 1 माइनस 0.02। ठीक है, आपको what if you are confused with this, write down in terms of percentage, if you are getting confused percentage में भी लिख सकते हो, okay? This is by the way 0.98, okay? 0.98 होता है ये। नहीं समझ में आया तो NAS
NC plus 3% of NC, तो 103 by NC. Okay, so in any case, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. When A and B are simultaneously excited, दोनों को एक साथ वाइब्रेट करवाया, 5 beats are heard. Okay, तो definitely Na minus Nb ये 5 equal to 5 है. Then the frequency of tuning fork A is, what is Na? It is 1.03 Nc. What is Nb? 0.98 Nc. This is 5. This is 1.03 minus 0.98. 0.05 Nc equal to 5. So Nc is 5 upon 0.05, that is 100. So Nc 100, so Na is 1.03 times of Nc, that is 1.03 times of 100, मतलब 103. Option number C, right? Good, good. So that's it for this particular chapter. We are done with waves and sound.